Hello everyone, welcome to this session. I hope you all are doing well. So आज हम लोग CIB का जो आपका चैप्टर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज एडवांस बैंक मैनेजमेंट, उसका हम लोग चैप्टर 2 दैट इज सप्लाई एंड डिमांड को कवर करने वाले हैं. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. ओके, सो दिस इज अ सेशन फॉर द सप्लाई एंड डिमांड एंड बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ दैट इवन यू जस्ट डू नॉट नीड टू बी ओपन योर बुक. ओके, open your Macmillan book if you having that. Okay, so let's quickly start the session for the supply and demand, and before to moving for the supply and demand that is a chapter, I just want to say you may also join our telegram channel that is by the link that is JB Sebi Shore. You may join our telegram group also. Okay, so quickly I'm just going to start the session that is for the demand and supply, and whatever the things I'm just going to convey you, the same thing you have to understand. Okay, this is a very important like whatever the sessions I'm just going to take, you know that like I will only cover the important things. Okay, so let's quickly start the session for the supply and demand. Okay, so first we have to understand that what we understand by the demand and what we understand by the supply. Okay, the very first thing, if I ask you one thing, like suppose that ये एक market है. Okay, so if I'm just asking you that this is a market, just a minute, let me change the ink pen. Okay, suppose that this is a market, I'm saying okay, so if I'm just saying here that this is the market, so आप मुझे बताओ जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बेचने वाले होते हैं. ओके, सो जो खरीदने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं बायर्स, और जो बेचने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं सेलर्स. ओके, now understand what we understand by the supply and demand. Okay, so you know buyers का क्या काम होता है when we talk about the buyers, what the need of the buyers. Okay, buyers जो होते हैं ये क्या जनरेट करते हैं, buyers actually generate the demand. Okay, buyers generate the demand and seller fulfills the supply, or you can also say sellers also generate the supply, and that we are going to understand in a very simplest way. Okay, you just do not need to open the book, whatever I'm just going to convey, the same thing you have to understand. Okay, so when we talk about the market, you know that there is a one buyer, another one that is a seller, and buyer actually generate the demand and sellers generate the supply. Okay, अगर मैं ये कहूँ कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई, इफ़ आई एम जस्ट सेइंग हियर दैट सपोज दैट कोई एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गई. ओके, तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, ऑब्वियसली पड़ेगा. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा. ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट, when we talk about the market, so market is the place जो स्टेबल नहीं है. ओके, सो मार्केट इज द प्लेस जो स्टेबल नहीं है, जो हर समय चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द व्हाट, बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, and that we have to understand. Okay, I'm just going to explain everything in a very simplest way. Okay, you just only need to watch that. Fine, एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करते चलिए. ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि मार्केट जो होता है, मार्केट में ही जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, डिमांड एक्चुअली जनरेट की जाती है बायर्स के द्वारा और सप्लाई जो होती है जनरेट की जाती है सेलर्स के द्वारा. ओके, सो अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ रही है तो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे फर्क पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो हम सब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि मार्केट इज अ प्लेस जो स्टेबल नहीं है, जो अनस्टेबल है. स्टेबल नहीं है मतलब अनस्टेबल है. ओके, सो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक आपके मैकमिलन में एक रेफरेंस दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे वेदर चेंज होता है, कभी धूप रहती है, कभी पानी बरसता है. ओके, तो ऐसे में हम वेदर फोरकास्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है,
अगर हमें कभी भी वेदर देखना होता है कि मान लो कि अगले हफ्ते में कब बारिश होगी या कब मौसम जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हॉट रहेगा, ओके, तो ऐसे में हम वेदर फोरकास्ट का यूज़ करते हैं, राइट, ओके। सो क्योंकि वेदर भी अनस्टेबल है और हमारी मार्केट भी अनस्टेबल है, तो हम मार्केट के लिए भी तो फोरकास्टिंग यूज कर सकते हैं, राइट और नॉट, ओके। सो मार्केट के लिए भी हम फोरकास्ट का यूज कर सकते हैं, हम हर उस चीज के लिए फोरकास्ट का यूज कर सकते हैं जो स्टेबल नहीं है, ओके, जो चेंज होती रहती है, ओके। सो इन द सेम डे अगर हम मार्केट में प्राइस का, सप्लाई का फ्लक्चुएशन कैसे रहेगा, इसके लिए हमें डिमांड एंड सप्लाई के अबाउट कुछ फैक्ट्स समझने होंगे, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, लाइक मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट का प्राइस कैसा रहेगा, सप्लाई कैसी रहेगी, कितना फ्लक्चुएशन रहेगा, इसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, इसके लिए हमें डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड and supply, when we talk about that, what we understand by the law of demand and supply, that is actually reflects the relationship between the demand and supply, okay. Law of demand and supply that actually reflects the relationship between the demand and supply, in that a change in one cause a change in another. That means in one, like, just understand carefully that what the law of demand and supply states, that a change in one, it would be whether demand or supply, it may be supply or demand, okay. So if demand is change, if any occurrence occur in the demand, then it really affects on the your supply, okay. So a change in one cause a change in another, that is actually stated by the law of demand and supply, okay. So basically law of demand and supply क्या करता है, ये एक इंट्रैक्शन होता है डिमांड एंड सप्लाई का, दैट डिजायर फॉर अ प्रोडक्ट एंड सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आई एम जस्ट सेइंग कि किसी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो कम है, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो कम है। सप्लाई कौन जनरेट करता है, सप्लाई जनरेट करता है सेलर, ओके। जब भी आपको कंफ्यूजन होता है कि सप्लाई है, तो आप ये इससे रिलेट कर सकते हैं कि एस स्टैंड्स फॉर द सेलर, ठीक है। सो सप्लाई इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द सेलर एंड डिमांड इज जनरेटेड बाय द बायर्स, राइट। So if supply of a product is low and demand is high, if supply of a product is low and demand is high, so अगर मैं पूछूं कि it means that, इट मीन्स अगर मैं पूछूं कि अगर कोई किसी प्रोडक्ट के लिए, सपोज दैट ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए सप्लाई जो है वो कम है, ठीक है, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज दैट कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मतलब बायर्स ज़्यादा है बट सेलर्स कम है, मतलब सप्लाई कम है, उसकी सेलर्स कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दैट मीन्स उसका, अगर मैं पूछूं उसका प्राइस कैसा होगा, तो यू विल डेफिनेटली से उसका प्राइस बहुत हायर होगा, ठीक है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड that this actually stated by the law of demand and supply, and that is actually written in this introduction page, that demand and supply is one of the most integral aspects of the economics. The law of demand and supply is a theory that establishes the relationship between the sellers and the buyers of a particular commodity. You can also understand commodity, like you can also relate it to the product, right? So the theory defines the relationship between the price of a commodity and the willingness of the buyers to either buy or sell that commodity or the product, okay. Just keep it simple. If I'm just instead of using the commodity, you can also relate it to the product, okay. So in normal conditions, as the price increases, sellers are willingly to supply more, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। लोग यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल थिंग आती है, ठीक है, जो अगर मैं बोलूँ, लोग अगर मैं एक बात कहता हूँ, अगर वो साइकोलॉजिकल फैक्ट अगर आप समझ गए, तो सप्लाई एंड डिमांड बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि लोग, व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि सप्लाई इज जनरेटेड बाय द सेलर, ओके। अच्छा एक चीज़ बताओ, सेलर
हमेशा क्या चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा का बिके या कम का बिके. यू विल से दैट सेलर ऑलवेज चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्राइस का बिके, ओके, नॉट द कम प्राइस का बिके. सो व्हाट इट इज़ रिटन दैट in the normal conditions as the price increases, okay, so sellers are willingly to supply more. जैसे जैसे प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का बढ़ता जाता है, सेलर्स जो होते हैं, सेलर्स की जो इच्छा होती है सप्लाई की वो भी बढ़ जाती है. ठीक है, अगर मैं यही बात करूं डिमांड की, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिमांड, सो बेसिकली डिमांड इज जनरेटेड बाय whom? डिमांड इज जनरेटेड बाय द बायर्स. अच्छा, बायर्स जो होते हैं वो कम में खरीदना चाहते हैं या ज़्यादा में खरीदना चाहते हैं? ऑब्वियसली बायर्स जो होते हैं वो कम रुपए में खरीदना चाहते हैं या कम प्राइस में खरीदना चाहते हैं. ओके, सो दैट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इस पे बेस आपको ग्राफ समझना है. ठीक है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है देन यू विल बी इजली टू मेक द ग्राफ फॉर दिस सप्लाई एंड डिमांड, राइट? नाउ, so the theory of the demand and supply is based on the law of demand and the law of the supply. The two laws came together to determine the actual market price and the volume of the product in the market. Okay, so that is a basically introduction where we are talking about the demand and supply. Okay, I am hoping that everyone just understanding this. Okay, in the real market, people's willingness to supply and the demand a commodity determines the market equilibrium. That we will understand in the part 2 of demand and supply, that what we understand by the equilibrium of the demand and supply, or the price where the quantity of the product that people are willingly to supply equals the quantity that people demand. Okay, so basically ये इसमें ये लिखा है कि इक्विलिब्रियम जो है मतलब जहाँ पे जितने लोग खरीदना चाहते हैं उतनी ही क्वांटिटी लोग बेचना चाह रहे हैं. ठीक है, हाउएवर वेरियस फैक्टर्स जो होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड इसके कारण जो होती हैं वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. Now understand what we have to understand by the demand. Okay, so when we understand by the demand that is generated by whom? Demand is always generated by the buyers. Okay, demand actually generated by the buyers. So demand is when a customer desires for a particular product at the given price in which they are ready to buy in one market at different prices during a certain period of the time. Hence there can be two aspects of the demand. One, that is willingness to buy, like कस्टमर की इच्छा है उस सामान को खरीदने की, उस प्रोडक्ट खरीदने की कि नहीं. सेकेंड, कस्टमर एबल है पे करने के लिए या नहीं. इस पे बेस जो होती हैं ये, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डिमांड दैट वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द शेड्यूल, जस्ट अंडरस्टैंड. लुक, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, इस चैप्टर में जब भी हम शेड्यूल बोलेंगे तो आपको हमेशा समझना है कि हम बात कर रहे हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की, लाइक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की. जब भी हम बात करेंगे कर्व की, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. What we are talking about? We are talking about the graphical representation. अगर ये समझ में आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली. ठीक है, सो देखो, जब हम बात करेंगे शेड्यूल के, एंड अभी आपको क्या करना है, अभी आपको शेड्यूल जब भी होगा तो आपको समझना है कि हम जो डेटाज जो जिस डेटा के अबाउट पढ़ेंगे वो उसको टेबल में रिप्रेजेंट करना. ठीक है, जब हम बात कर्व की करेंगे तो जो हमने टेबल में डेटाज जिसके ऊपर डेटाज बनाए हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज नोन एज अ कर्व. राइट, नाउ what we understand by the demand schedule. Okay, so schedule, that is like the demand schedule, that means tabular representation. When we talk about the curve, that means a graphical representation. Okay, so जब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूँ. द डिमांड, इट इज द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. The demand schedule, when we talk about the demand schedule, it is nothing but the statement. Okay, so it is nothing but the statement in the form of the table that shows the different quantities in the demand at different price. नहीं समझ में आया? सुनिए, देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, द डिमांड शेड्यूल इज व्हाट? द डिमांड शेड्यूल is the tabular representation. The demand schedule is a tabular representation
or you can also say it is a statement in the form of the table. It is a statement in the form of the table. Just a minute. Okay, like you can understand, like this is a table I have just make here. So this, that the demand schedule is what, this is a tabular representation, okay, that shows the different quantities demanded at the different price. That's it. What we are talking about, we are talking about the price, and we are talking about the quantity that is demanded, and demand is always generated by the buyers, okay. So whenever we talking about that different price, like it is a statement in the form of the table that shows the different quantities in demand at the different price. अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की, ओके, सो अगर लाइक बायर्स का क्या मन होता है, बायर्स क्या चाहते हैं, बायर्स चाहते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस पे मिले, ठीक है। बायर्स क्या चाहते हैं, बायर्स चाहते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस पे मिले, राइट। सो अब अगर किसी भी प्रोडक्ट का, हम किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सो अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 100 पर केजी है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 100 है, ठीक है, तो वहाँ पे डिमांड जो है वो क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट के प्राइस 100 है तो डिमांड 150 है, अगर प्रोडक्ट के प्राइस 150 है तो डिमांड कितनी है, 100 है। वॉट वी अंडरस्टैंड बाई दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है इस प्रोडक्ट का, वैसे वैसे बायर्स जो होते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, वहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, बायर्स जो हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, ओके। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज प्राइस is inversely proportional to the quantity demanded. What we understand by this statement, we have to understand कि जब भी हम डिमांड की बात करेंगे वहाँ पे जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिमांडेड क्वांटिटी के। इट इज क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। सपोज दैट ये बायर है, सपोज दैट ही इज अ बायर। अगर कोई चीज़ 100 की है, ओके, कोई चीज़ 100 की है तो ये बायर 150 क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 150 की हो गई तो ये बायर उसको ये बायर 100 क्वांटिटी ही केवल परचेज करना चाह रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर 300 हो गया, हम सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो चार्ट बनाए ये सेम प्रोडक्ट का बना है, ठीक है। अगर सेम प्रोडक्ट का प्राइस अगर 300 हो जाएगा तो वहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई, 20 हो गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। इस पे बेस क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड हियर टू थिंग्स, कि जब भी हम शेड्यूल की बात करेंगे, सो शेड्यूल इज ऑलवेज अंडरस्टैंडेबल एज अ टेबल फॉर्मेट, ओके। जब भी हम टेबल बना रहे हैं, ये टेबल है ना, दिस इज अ टेबल। सो जब भी हम टेबल बनाएंगे, दैट मीन्स दैट इज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिमांड शेड्यूल, ओके। नाउ जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। सो यही है दैट डिमांड शेड्यूल। अब इसमें आप चाहे जितनी भी थ्योरी डाल दो, दैट डजंट मैटर, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, so the demand schedule is basically the statement in the form of the table that shows the different quantities in demanded at the different price, okay. So basically it is a table that shows the quantity demanded at the various price, right? So हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि डिमांड शेड्यूल, द डिमांड शेड्यूल दैट मीन्स टैबुलर फॉर्मेट, दैट मीन्स प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, okay. That's it for the demand schedule. Now understand what we understand by the demand curve, okay. Like in the previous slide I just elaborate this. मैंने ये बताया आपको वहाँ पे कि जब भी हम शेड्यूल की बात करेंगे, द डिमांड शेड्यूल, दैट मीन्स हम वहाँ पे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जब भी हम कर्व की बात करेंगे दैट मीन्स हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। लुक, अभी भी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी हम डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं प्राइस की।
डिमांड की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो इनके बीच हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लाइक प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द product price and the quantity demanded, or you can also say that in a very simplest form that graphical representation of the demand schedule। okay, like जो भी आपने टेबल बनाई थी डिमांड शेड्यूल में, so graphical representation of the demand schedule is also known as the demand curve, और ये क्वेश्चन 0.5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। so that is important, right? now, so you can understand here also the price are on the vertical axis and the quantity that is on the horizontal axis। okay, so it is drawn like it is just drawn with the price on the vertical axis, so you can understand like in the same language you have to understand that जो price होता है वो vertical axis में है और जो quantity demanded है वो horizontal axis में है, ठीक है। सो प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड। जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस की बात करेंगे, शेड्यूल, टैबलो फॉर्मेट, कर्व, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप दिस इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल ऑफ द स्टफ फ्रॉम दिस स्लाइड। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, जैसे ये है, ये मैंने एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज दैट किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस हम पिछले वाला ही ले लेते हैं एग्जांपल, 100, 150, 200। ओके, लेट्स जस्ट मेक हियर दैट इज दिस इज 100, दिस इज 150 एंड दिस इज 200। ओके, सो 100, 150, 200 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, लेट्स सपोज दैट हियर इट इज जस्ट अ मिनट, हियर इट इज 150 सॉरी 80, 100, 150। okay, so 80, 100 and the 150। okay, now just tell me when we talk about the like now like you can understand जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 था, देखो ये मैंने किसका बनाया, ये मैंने बनाया प्राइस का, और ये मैंने बनाया कि जितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, ठीक है। सो ये है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो हमारा प्राइस जब 100 था, दैट मीन्स वो कम था, और कम प्राइस पे बायर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ये रिप्रेजेंट, हमारा कहाँ पे पॉइंट आएगा, हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अब वहाँ पे 150 पे कितने बायर्स थे, 150 पे बायर्स थे हमारे 100, तो अब हमारे कहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। 200 पे बायर्स और कम हो गए, क्या हो गए, 80 हो गया, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब ये जो स्लोप है, ये स्लोप कौन सा स्लोप बन रहा है, यू विल से दैट इज नोन एज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ओके, ये एग्जैक्टली नहीं बना है, इसको एग्जैक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है। सो आपको बस ये समझना है यहाँ पे कि ये जो एस कैसे बनेगा, दिस वुड बी मेक लाइक दिस। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये क्या है, लॉ ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ आई आस्क यू वन थिंग, दैट how price and quantity demanded related, so you will definitely say it is inversely proportional। okay, so price and the quantity demanded, that is inversely proportional। for that reason the curve between the price and the quantity demanded would be sloping downward। एंड अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, सो यू विल से दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। जस्ट राइट डाउन दिस। ओके, so when I talk about that what is the direction of that, then you will say that is from the northwest to southeast। okay, so this is you have to understand। so this is also known as a law of downward sloping demand, and when the price of the product is increased, buyers tend to buy less of the product, and similarly when the price is lower, then quantity demanded, that is increases। okay, one more important thing I just want to tell you here, that just a minute, I will add one more slide here, just a minute। okay, let's understand here।
look, one more important thing I'm just going to tell you here. Whenever quantity demanded for the product fall, जब भी किसी भी कोई जैसे सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है, ओके ये प्रोडक्ट है और इसकी जो डिमांड है, इसकी जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो अगर कम हो रही है, ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो फॉल हो रही है, वो कम हो रही है, सो उसके दो रीज़न हो सकते हैं. पहला रीज़न जो है उस रीज़न को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. जस्ट अंडरस्टैंड दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लाइक ऑल्टरनेटिव. ओके, सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव है. लाइक सपोज दैट हम अगर बात करते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल और डीजल, और यू कैन ऑल्सो से दैट इज CNG. ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, सपोज दैट इन केस अगर प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेज, then demand for the diesel or CNG car, then definitely that is going to be erased. Okay, अगर मैं बात करता हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस सपोज दैट आपके 200 हो जाते हैं एंड डीजल के प्राइस वहीं पे 100 रहते हैं, सो व्हाट यू विल से दैट डीजल एंड CNG जो कार्स हैं उनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सेम वे अगर मैं बात करता हूँ एक और एग्जांपल की, दैट इज योर टी एंड अ कॉफी. ओके, सपोज दैट कॉफी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ओके, सो देयर विल बी पॉसिबिलिटी दैट पीपल विल प्रिफर द टी ओवर द कॉफी. ओके, सो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया, सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो लोग क्या प्रेफर करना शुरू कर देंगे, दैट इज डीजल और CNG बेस्ड कार्स. ओके, सो दैट यहाँ पे आप समझ सकते हैं दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सपोज दैट कॉफी के प्राइस बहुत बढ़ गए, तो वहाँ पे लोग क्या प्रेफर करना शुरू कर देंगे, दैट इज योर टी. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन थिंग रिलेटेड टू द अनदर. Okay, second thing is known as the income effect, and when we talk about the income effect, you can say that is you can relate it to the affordability. Suppose that prices goes up and for some people that is not affordable. Okay, so then you can understand that this would be the second effect. Okay, now if I just talk about the one more important thing, okay, one more important thing that forces behind the market demand, and before to understand this we have to understand that what is the market demand and what we understand by the market demand. Okay, market demand क्या होती है ये हम समझ लेते हैं, right? So market demand, it is a summation of all individual demand curves in the given market. Like हम मार्केट, जब भी मार्केट की बात करते हैं, लुक मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट में तो बहुत सारे बायर्स होते हैं, राइट. ओके, सो जब भी हम मार्केट की बात करेंगे, अभी तक हम डिमांड की बात कर रहे थे, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द इंडिविजुअल. ओके, जब हम मार्केट की बात करेंगे, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड. What we understand by the summation of all individual demand, and that's it for the market demand. Okay, now understand the forces behind the market demand. Okay, look, you can understand the demand can affect by so many factors, and like few factors that is actually described in your Macmillan book that we are going to understand. Okay, so forces behind the market demand, first we have to understand that is income. Okay, the very important factor that is your income, you know, it is a key factor of demand. When we talk about the income, that is actually the key factor of the demand. As a people's income rises, अगर मैं बात करता हूँ कि ये कोई मिस्टर ए हैं और इनकी इनकम बढ़ गई, ओके, अगर इनकी इनकम बढ़ गई, सो व्हाट यू विल से दैट ये डेफिनेटली बाई करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी. ओके, डेफिनेटली बाई करेंगे बहुत सारी चीज़ें. ओके, so what would happen to this Mr. A, that is demand, like you can understand what would happen to Mr. A, and opposite of that, if I'm just talking about one more example, like opposite of that, suppose that this is a Mr. X. Okay, and Mr. X actually what would happen to Mr. X demand for the mobile phone.
like when he actually lost the job, suppose that Mr. X lost the job, Mr. X की जॉब चली गई, ओके. सो अगर मिस्टर एक्स को मोबाइल खरीदना था और मिस्टर एक्स की जॉब चली गई, सो व्हाट यू विल से दैट डिमांड फॉर द मोबाइल. एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जब भी हम डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनस की, ओके. लाइक you have to always relate it to the individual. So अगर I'm talking about the Mr. X, so you have to understand that अगर Mr. X की जॉब चली गई, Mr. X को मोबाइल फ़ोन खरीदना था, so you will say that वहाँ पे Mr. X लाइक मोबाइल फ़ोन की जो डिमांड होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, you will definitely say that demand for the mobile phone that is going to be fall, okay, that is going to be decreased, okay. One more important thing, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको अपने कॉपी पे नोट करना है, ठीक है. जब भी हम दो गुड्स की बात करेंगे, हम जब भी एबीएम में बात करेंगे तो दो गुड्स की बात कर रहे हैं अगर हम, एक होता है नॉर्मल गुड्स, ओके. अगर हम बात करें, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक गुड होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड. Anyone who can tell me that what we understand by the normal goods and what we understand by the inferior goods, okay. Anybody can tell me here, okay. Look, one this is a very important thing to understand. Whenever demand for a good, when we talk about that, oh, just a minute, okay. When we talk about that demand for any, like demand for any product, okay. Whenever demand for any product that actually fall, okay, like when income falls, the demand for that product is actually false, okay. So the good is called the normal goods, like, and this is a very important to understand. like when जब हम बात करें कि किसी पर्सन की इनकम जो है वो कम हो गई, या मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उनकी इनकम कम हो गई, सो जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी. सो ये तो हो गया नॉर्मल गुड्स के केस में. अगर इनकम कम हो गई और किसी पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट की या फिर कुछ प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई, ओके. सो वहाँ पे उन गुड्स को हम नाम देते हैं दैट इज़ योर इन्फीरियर गुड्स, ओके. और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज दैट किसी पर्सन की इनकम कम हो गई, ओके. तो अब मुझे बताओ कि अगर किसी पर्सन की इनकम कम हो गई, वो कार से ट्रैवल करता था, ठीक है, वो कार से रोज अपनी कार से घर से ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, एंड उसकी इनकम कम हो गई, ओके. तो अगर इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा, सडनली जो अब वो क्या प्रेफर करने लगा, वो बस राइड प्रेफर करने लगा. दैट मीन्स वहाँ पे जो बस राइड की जो डिमांड है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ओके. सो ये जो केस है, इस केस में क्या होगा, दिस इज नोन एज अ इंफीरियर गुड्स, ओके. व्हेन जब हम बात करते हैं कि देखो जहाँ पे इनकम कम हो रही थी, डिमांड कम हो रही थी, दैट इज ऑब्वियस केस, दैट इज नॉर्मल केस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉर्मल गुड्स. बट इनकम कम हुई और किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज अ इंफीरियर गुड्स, ओके. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट, size of the market, that actually important. So you can understand it basically depends on the population. Whenever we talking about the size of the market, you can say it is actually depends on the population. Like suppose that we are talking about like for any product, okay. अगर हम बात कर रहे हैं this ये यूपी है, ठीक है. अगर हम बात करें सपोज दैट ये यूपी है और ये है हिमाचल प्रदेश, ओके. सो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन, लाइक साइज ऑफ द मार्केट दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन. लाइक जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होगी, ओके. सो दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द population. So size of the market, that is nothing but your population case, okay. Right. Third, that is price and availability of the related goods, okay. So whenever we're talking about like this example we have taken, like suppose that पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ गया तो हम लोग डीजल और सीएनजी कार्स प्रेफर करने लगे, ठीक है. सो दैट इज एग्जाम्पल फॉर द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलेटेड goods, okay. After that, taste or preferences. You know, if you like, suppose that for example, if you like ice cream, okay, so you will buy more of it because you like the ice creams, okay.
Like suppose that I'm just talking about, because whenever we're talking about the demand, we actually talking about the individual. Okay, so like suppose that you are talking, like suppose that you like ice cream, so you will buy more of it, and it basically based on the historical and psychological forces that are beyond the economics. Okay, what I'm just talking about, I'm just talking about that actually based on the historical or and psychological forces that are beyond the economics. Okay, last, that is a spatial influences, that all forces that actually is in your syllabus of the CIB, so that you only have to understand. Next is the spatial influences for the particular good. Suppose that it will also affect the demand for the particular goods. Like the demand, like suppose that we are talking about like suppose that अब पानी का मौसम है, like वेदर जो है वो पानी का है एंड बारिश का मौसम है. ओके, सो वहाँ पे लोग क्या प्रेफर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अम्ब्रेला प्रेफर करेंगे. वहाँ पे लोग क्या प्रेफर करना शुरू कर देंगे, दैट इज़ रेन कोट. इनकी जो बाइंग है वो क्या होगी, इनकी बाइंग सडनली क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी. लाइक अम्ब्रेला, रेन कोट बारिश के मौसम में. ठीक है, वहीं अगर मौसम जो होगा हॉट होगा तो इनकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो ना के बराबर होगी. ठीक है, सो स्पेशल इन्फ्लुएंसेस फॉर द पर्टिकुलर गुड्स, दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट. Okay, I hope this is understandable for everyone. Okay, so that's all for this session. I hope you all shift in demand, and after the supply schedule, supply curve, equilibrium, that we will understand in the part 2 of this chapter. So today was the first class for your supply and demand. I hope you all just enjoyed this. Just a minute. Okay, thank you everyone for joining me here. I hope you all just enjoyed this session. So if you like this lecture and if you want these kind of the session, just appreciate by your just hit the like button. Okay, and share this video to your friends, to your colleagues, so that maximum number of our bankers can join with us in these kind of the sessions. And also subscribe the channel so that you are just going to get notified whenever I'm just going to post any videos. Okay, so thank you everyone for joining me in this session. I hope you all just understood this, and just show your love on your into the comment section. Okay, I'm just hoping that everyone just understood perfectly in this class. Okay, so thank you everyone for joining me here.